Good morning, class, and welcome to the next lecture of financial markets. So we were discussing about moral hazard and adverse selection. So we said that problems of moral hazard and adverse selection they warrant that additional steps be taken to counter these claims. Okay, so basically we know that there is a problem of moral hazard and adverse selection which exist, especially in the banking sector, okay, and in general the financial industry. So the idea is to basically we want to reduce this moral hazard and adverse selection. Okay, so to reduce moral hazard and adverse selection and to counter this problem of moral hazard and adverse selection, we have to take some steps. Okay, mainly because we have already discussed that it is not possible for the customers of a bank to take action to reduce the problem of moral hazard and adverse selection. Okay. One reason for that is because the customers of bank, uh, they it is difficult for them to obtain information about activities of a bank and thus to impose a discipline on it. Okay. By discipline, we mean, let's say if a bank is engaging in some very risky activities, the customers of a bank they can actually take disciplinary action, right, in the form of, for example, withdrawing funds. So if a bank is engaging in some very risky activities, the customers of a bank they can take disciplinary action by withdrawing funds from the bank. Okay, but that is not always possible because it is difficult for the depositors to obtain information about activities of a bank. Okay, so in that case, banks they have to be controlled in some other way, which basically means because customers are not in a position to impose a kind of discipline on the banks and to reduce the problem of moral hazard and adverse selection. So we need some other type of regulation. So we need some kind of regulation over here to control the problem of moral hazard and adverse selection. ठीक है, so because we need regulation to govern the working of banks and to make sure that the problem of moral hazard and adverse selection is reduced, so we can say that banks are prone to regulation, and because of that regulation they are subject to strict regulations to restrict their holding of risky assets such as common stocks. Okay, because banks are subject to regulations, which basically means government regulation. Banks are subject to government regulation, and the purpose of those government regulation is to restrict the holding of risky assets such as common stock. Okay? Because most regulations they actually restrict banks from holding risky assets. They actually discourage banks from holding risky assets such as common stock. Okay. So now we'll talk about regulation. What type of regulation, what type of government regulation exists to prevent the problem of moral hazard and adverse selection. Okay. So there are basically 3 or 4 different types of regulations. Okay. The first type of regulation is related to capital requirements. When we talk about capital requirements, we mean the amount of capital which banks are required to hold to guarantee the loans they have or to guarantee other kind of liabilities which they hold. So basically, the governments all over the world they impose capital restrictions on banks. So government imposed capital restrictions are another way of minimizing moral hazard and financial institutions. The first type of capital restriction is based on the leverage ratio. Leverage ratio is the amount of capital divided by the bank's total assets. So again, the purpose over here is to make sure that the amount of capital which banks hold it is equal to a certain minimum value, and in this case the amount of capital is calculated using the leverage ratio. Leverage ratio क्या है? It's basically the amount of capital divided by the bank's total assets. ठीक है.
कैपिटल रिस्ट्रिक्शन इसलिए एग्जिस्ट करती है बिकॉज गवर्नमेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इंक्रीजिंगली वरिड अबाउट बैंक्स होल्डिंग ऑफ रिस्की एसेट्स. ठीक है, सो बिकॉज बैंक्स फॉर रिस्की एसेट्स लाइक लोन्स, और उन लोन्स को गारंटी करना जो है वो ज़रूरी है. तो बेसिकली इस कैपिटल का मकसद ये होता है, इट एक्ट्स एज अ कुशन. बेसिकली ये कैपिटल जो होता है एग्जिस्ट करता है टू एक्ट एज अ बैकअप in case banks are not able to fulfill their obligation, या basically जब हम loans की बात करें, in case banks are not able to collect back their loans. ठीक है, ठीक है, बिकॉज बैंक्स का जो मेन फंक्शन होता है इज टू एक्सटेंड क्रेडिट, यानी कि लोगों को लोन्स देना. ठीक है, तो वो लोन्स जो है बेसिकली दे उसकी बैलेंस शीट पे शो होते हैं. ठीक है, और लोन्स अगर बैंक वापस ना कलेक्ट कर सके, ठीक है, तो दैट कैन लीड टू ह्यूज लॉसेस. ठीक है, तो ये कि जो कैपिटल विच बैंक होल्ड्स, इस कैपिटल का मकसद ये होता है टू एक्ट एज अ प्रोटेक्शन इन केस बैंक्स आर नॉट एबल टू कलेक्ट द लोन्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स. ठीक है, सो अनकलेक्टेबल डेट के अगेंस्ट दिस इज स्पेशली यूजफुल. उसके अलावा इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ क्वेश्चन अगेंस्ट ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़. ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़ बेसिकली क्या होती हैं, सर्टन काइंड ऑफ एसेट्स या लाइबिलिटीज़ होती हैं विच डू नॉट हैव टू बी रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट. ठीक है, तो समटाइम्स दे कैन बी सम वेरी रिस्की एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं. ठीक है, तो इफ अ बैंक इज होल्डिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ बैलेंस शीट liabilities, ठीक है, तो दैट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, बिकॉज वो जो ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटीज़ होती हैं वो नज़र नहीं आती. ठीक है, एन इन्वेस्टर हु इज़ पुटिंग मनी इन द बैंक, ठीक है, एन इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन द बैंक, या अ कस्टमर हु इज़ पुटिंग हिज मनी इन अ बैंक अकाउंट इन अ बैंक, या एनी पर्सन या एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टर हु इज़ बाइंग द स्टॉक ऑफ दैट बैंक. ठीक है, तो बेसिकली दो तरह के लोग हैं, एक तो इन्वेस्टर हैं हु इन्वेस्ट मनी इन द बैंक, और नॉर्मली दे इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टॉक. ठीक है, बैंक का स्टॉक खरीदते हैं. उसके अलावा वो लोग हैं जो अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं. ठीक है, तो अगर बैंक की ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो देयर इज़ अ चांस दैट द बैंक इज़ गोइंग टू डिफॉल्ट. ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि बैंक डिफ़ॉल्ट, बिकॉज अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करेगा तो जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है या जिन लोगों ने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए वांट टू मेक श्योर कि जो ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़ हैं या ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटीज एसेट्स हैं वो कम से कम ऑन द बैंक. Okay, so an agreement has been reached among banking officials from industrialized countries. They set up the Basel Committee on Banking Supervision, which has set up the Basel Accord. ठीक है, सो बेसल एक जगह है, वहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी, इसको कहते हैं बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. ठीक है, इसका नाम है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. ठीक है, विच वॉज सेट अप एज पार्ट ऑफ द बेसल अकॉर्ड. बेसल अकॉर्ड का बेसिकली पर्पज़ ये था टू come up with some new rules and regulations which will make it easier to monitor the performance of banks. ठीक है, यानी बैंकिंग बेसल अकॉर्ड का बेसिक पर्पज़ ये था टू सेट अप रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड है वो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करें जिसकी वजह से इट इज़ गोइंग टू बिकम अ लॉट ईजियर टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक्स. तो बेसल अकॉर्ड के तहत काफ़ी रिकमेंडेशंस दी गई थी. ठीक है, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस रिकमेंड किए गए थे. ठीक है, तो उसमें से कुछ वी आर गोइंग टू डिस्कस. द बेसल अकॉर्ड रिक्वायर्स दैट बैंक्स होल्ड एज कैपिटल एटलीस्ट 8% ऑफ देयर रिस्क वेटेड एसेट्स. ठीक है, एंड दिस हैज़ बीन adopted by more than 100 countries. ठीक है, तो बेसिकली बेसल अकॉर्ड कहता है कि बैंक्स जो हैं दे शुड होल्ड एज कैपिटल एटलीस्ट 8% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स. रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब है रिस्की एसेट्स. ठीक है, स्पेशली जो रिस्की एसेट्स हैं उनके अगेंस्ट बैंक शुड होल्ड एटलीस्ट
8% of, यानी कि it should hold as capital which is equal to 8% of the risky assets. ठीक है, तो इसका अगेन पर्पज़ ये होता है कि रिस्की एसेट्स के अगेंस्ट बैंक के पास कुछ कैपिटल होना चाहिए टू इन केस वो रिस्की एसेट्स जो हैं वो मेच्योर नहीं होते, तो बैंक हैज सम काइंड ऑफ बैकअप. ठीक है, इसके अलावा एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़ वर एलोकेटेड इनटू 4 कैटेगरीज. ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी हैज जीरो वेट एंड इंक्लूड्स आइटम्स दैट हैव जीरो डिफॉल्ट रिस्क. ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स की जो है और ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़ की उन्होंने कैटेगरीज बना ली. ठीक है, तो बेसिक रिकॉर्ड में दे हैव बेसिकली डिवाइडेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट activities into 4 categories. The first category basically includes those kind of assets, ठीक है, which have जिसको आप कह सकते हैं they have zero default risk. ठीक है, zero default risk किन चीज़ों का हो सकता है, like जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं. ठीक है, they have zero default risk, स्पेशली जिनको हम टी बिल्स कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स. ठीक है, दे हैव ज़ीरो डिफॉल्ट रिस्क. ठीक है, तो पहली कैटेगरी में इस तरह की जो है सिक्योरिटीज़ इंक्लूडेड थी. ठीक है, द सेकेंड कैटेगरी हैज़ 20% वेट एंड इंक्लूड्स क्लेम्स ऑन बैंक्स इन OECD कंट्रीज. तो सेकेंड कैटेगरी का वेट थोड़ा ज़्यादा है. ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स क्लेम्स ऑन बैंक इन OECD कंट्रीज. OECD stands for Organization for Economic Cooperation and Development. ठीक है, तो OECD कंट्रीज़ कौन सी हैं, I leave that up to you to find out. ठीक है, तो इसमें मेनली हमारे पास इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज आती हैं. ठीक है, there are number of countries in the OECD. I would like you to go on the internet, Google it and find out. The third category has 50% weightage and includes municipal bonds and residential mortgages. ठीक है, तो तीसरी कैटेगरी में residential mortgages included हैं and they have also included municipal bonds. ठीक है, municipal bonds क्या होते हैं? Municipal bonds are actually bonds which have been issued by municipal corporations. ठीक है, तो पाकिस्तान में तो municipal corporations bonds नहीं issue करती, but it's quite common in some other countries like USA में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, जिसका हम म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं. ठीक है, दे डू इशू बॉन्ड्स. ठीक है, तो इसमें वो वाले म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इंक्लूडेड होते हैं. उसके अलावा रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस भी होते हैं. ठीक है, रेजिडेंशियल मॉर्गेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, व्हाट दे आर. ठीक है, तो रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस बेसिकली दे आर अ टाइप ऑफ मॉर्गेज विच इज़ टेकन टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंसेस. ठीक है, यानी कि अगर आपने अपना घर बनाना है तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बैंक से रेजिडेंशियल मॉर्गेज लेंगे. ठीक है, तो रेजिडेंशियल मॉर्गेज इज़ अ टाइप ऑफ लोन जिसको लोग अवेल करते हैं, यानी कि उस लोन को लिया जाता है टू कंस्ट्रक्ट रेजिडेंट्स. ठीक है, मतलब टू कंस्ट्रक्ट रेजिडेंस. तो रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस आर अ टाइप ऑफ लोन विच आर मेंट फॉर रेजिडेंसेस. ठीक है, यानी कि रेजिडेंशियल सेक्टर के लिए लोन्स लिए जाते हैं. ठीक है, तो फोर्थ कैटेगरी हैज़ 100% वेटेज, यानी फोर्थ कैटेगरी का वेटेज सबसे ज़्यादा है. एंड दिस इंक्लूड्स लोन्स टू कंज्यूमर्स एंड कॉर्पोरेशंस. ठीक है, तो बैंक्स जो लोन्स देता है टू कंज्यूमर्स एंड कॉर्पोरेशंस, दैट इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी. ठीक है, बेसल 1 की रिकमेंडेशंस अच्छी हैं बट इट हैज़ इट्स लिमिटेशंस. ठीक है, बिकॉज बेसल 1 ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, इट वाज थॉट दे आर नॉट इनफ टू इंश्योर दैट बैंक्स डू नॉट एंगेज इन रिस्की एक्टिविटीज़. ठीक है, बिकॉज हमारा जो अकाउंटिंग की रेगुलेशन है ख़ास तौर पर, ठीक है, अकाउंटिंग की रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ इस तरह से होती हैं कि यू कैन एक्चुअली चूज़ टू record some assets on your balance sheet. ठीक है, एंड जिस तरह इसकी एग्जांपल ऐसी है, बैंक्स कीप मोर रिस्की एसेट्स ऑन द बुक सच एज अ लोन टू अ कंज्यूमर वाइल टेकिंग ऑफ देयर बुक्स
लो रिस्क एसेट्स सच एज अ लोन टू अ कंपनी विद लो रिस्क। यानी कि अकाउंटिंग रेगुलेशंस कुछ ऐसी हैं विच गिव परमिशन टू बैंक्स दैट दे कैन कीप सम रिस्की एसेट्स ऑन द बुक व्हाइल रिमूविंग सम अदर एसेट्स फ्रॉम द बुक्स। ठीक है, यानी कि दे कैन कीप सम risky assets on the financial statements, at the same time removing some assets from the financial statements। ठीक है, यानी कि बैंक्स जो है वो दे have the choice to, under Basel 1 and the accounting regulations, banks have the choice to keep risky assets on the books such as a loan to a consumer। ठीक है, कंज्यूमर को जो लोन दिया जाता है इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिस्की। ठीक है, बैंकिंग की दुनिया में कंज्यूमर लोन्स आर कंसिडर्ड मोर रिस्की। ठीक है, so banks can choose to keep more risky assets on the book while taking off their books low risk assets such as a loan to a company with low risk। ठीक है, तो बैंक्स जो बिजनेसेस को लोन देते हैं स्पेशली व्हेन दे आर गिविंग आउट लोन्स टू लो रिस्क बिजनेसेस, तो दे आर कंसिडर्ड लेस रिस्की। So to address some limitations of Basel 1, the Basel Committee on Banking Supervision has recently released new proposals for a new record। ठीक है, to address some limitations of Basel 1, Basel Committee on Banking Supervision has released a new proposal for a new accord। ठीक है, एंड ये जो नया accord है इसको हम Basel 2 कहते हैं, उसकी भी हम थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, so basically the thing we need to realize is that if amount of capital of a bank falls below a certain limit, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, so it leads to two serious kind of problems। First, the bank is more likely to fail if it has a smaller capital cushion। Secondly, with less capital, the bank is likely to take on more risk। ठीक है, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। बैंक जो है कैपिटल जब रखता है, ठीक है, सो द पर्पज़ ऑफ मेकिंग श्योर कि बैंक हैज़ इनफ कैपिटल ऑन इट्स बैलेंस शीट, उसका पर्पज़ यही होता है कि जो कैपिटल है इट एक्ट्स एज अ कुशन अगेंस्ट द लाइबिलिटीज़ ऑफ द बैंक। ठीक है, या इवन अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ अ बैंक। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ के किस तरह की हो सकती हैं? बेसिकली बैंक्स जो लोन्स देता है कस्टमर्स को, ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ अ लाइबिलिटी। ठीक है, लेकिन बैंक्स के लिए इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेट। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो लोन्स होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अ बैंक। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेट फॉर द बैंक, और अगर बैंक वो लोन्स कलेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, बैंक अगर वो लोन्स वापस कलेक्ट नहीं कर पाता, तो इट कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम लाइक बैंकरप्सी। ठीक है, तो अगर बैंक वो लोन्स कलेक्ट ना कर पाए तो इट कैन लीड टू बैंकरप्सी ऑफ दैट बैंक। ठीक है, तो ये जो कैपिटल होता है इसका पर्पज़ ये होता है टू एक्ट एज अ क्वेश्चन अगेंस्ट दीज रिस्की एसेट्स लाइक लोन्स, ताकि इन केस अगर बैंक लोन्स वापस ना कलेक्ट कर सके तो बैंक के पास एक बैकअप हो, अ बैकअप कैपिटल हो टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस। ठीक है, दूसरा ये होता है कि अगर बैंक के पास कैपिटल कम हो, बैंक नोस के उसके पास जो है एक सिक्योरिटी नहीं, ठीक है, कैपिटल एक्ट्स एज अ बैकअप एंड एज अ सिक्योरिटी इन केस कस्टमर्स डिफॉल्ट ऑन देयर लोन्स। ठीक है, तो ये जो कैपिटल एक्ट्स एज अ बैकअप एज अ क्वेश्चन, अगर बैंक से पास से कैपिटल कम हो तो बैंक्स नो दैट दे हैव टू डू मोर टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। ठीक है, अगर कैपिटल कम है देन बैंक्स हैव टू डू मोर टू मेक श्योर कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, तो इस डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में दे टेक ऑन मोर रिस्क। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में दे कीप ऑन टेकिंग इवन मोर रिस्क। ठीक है, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के अलावा सुपरविजन भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल सुपरविजन। ठीक है, फाइनेंशियल सुपरविजन एंड प्रूडेंशियल सुपरविजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग मॉरल हैजर्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन। ठीक है, सुपरविजन का मतलब है कि आप डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे हैं द ऑपरेशन ऑफ अ बैंक। ठीक है, एंड अगेन इसका पर्पज़ वही है टू रिड्यूस मॉरल हैजर्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल सुपरविजन में एक चीज़ होती है चार्टरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज़ वन मेथड ऑफ कंट्रोलिंग हु ओन्स द बैंक्स। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आप जब कोई बैंक बनाते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दैट बैंक इज़ गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है,
या इट इज़ गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स हु डू नॉट हैव एनी स्किल्स टू रन अ बैंक. ठीक है, दोनों केसेस में इट इज़ वेरी रिस्की. ठीक है, यू वांट कि जो बैंक्स हैं दे आर एक्चुअली कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय पीपल हु हैव द स्किल्स. ठीक है, अच्छे सीजन बिजनेसमैन जो हैं बैंक्स को ओन करें और उनको चलाएं, एज कम्पेयर टू पीपल हु हैव नो नॉलेज अबाउट बैंकिंग एंड सो ऑन. So chartering is a process which basically gives approval to the formation. ठीक है, जब भी कोई नया बैंक बनता है it has to get a charter. Charter क्या होता है? It's a type of approval from appropriate authorities. ठीक है, तो जब भी कोई नया बैंक बनता है it has to get approval from the appropriate authorities. ठीक है, और वो appropriate authorities जो हैं they make sure that the bank has the right kind of management. ठीक है, and it has the right kind of owners ताकि वो लोग बैंक को अच्छी तरह से मैनेज. ठीक है, तो चार्टरिंग में ये चीज़ इंश्योर की जाती है चार्टरिंग प्रोसेस में कि द ओनर्स ऑफ द बैंक एंड द पीपल हु आर गोइंग टू मैनेज इट दे आर केपेबल पीपल एंड दे कैन एक्चुअली रन अ बैंक. ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है. अगर वो केपेबल लोग ना हो तो इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द बैंक. तो इन दैट सेंस हम कहते हैं चार्टरिंग कैन एक्चुअली प्रिवेंट थिंग्स लाइक स्पेकुलेटिव एक्शन, थिंग्स लाइक वेरी रिस्की एक्टिविटीज़. ठीक है, बिकॉज अगर किसी बैंक के ओनर्स या उसकी मैनेजमेंट केपेबल नहीं है तो द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कैन सिंपली रिफ्यूज़ टू गिव चार्टर टू द बैंक. ठीक है, बैंक को अगर चार्टर नहीं मिलेगा तो वो बैंक जो है इट कैन नॉट एक्चुअली कम इनटू एग्जिस्ट. ठीक है, वो बैंक नहीं बन सकता. ठीक है, लीगली उस बैंक को इजाज़त नहीं होती टू फंक्शन एज बैंक. ठीक है, थ्रू चार्टरिंग प्रपोजल्स फॉर न्यू इंस्टीट्यूशंस आर स्क्रीन्ड टू प्रिवेंट अनडिज़ायरेबल पीपल फ्रॉम कंट्रोलिंग. ठीक है, तो ये वही जो हम बात कर चुके हैं. उसके अलावा जो सुपरविजन में एक और चीज़ है, रेगुलर ऑन साइट विजिट्स आर कंडक्टेड. ठीक है, विच अलाउ रेगुलेटर टू मॉनिटर whether a bank is complying with the rules and regulations which exist or not. ठीक है, तो स्पेशली जो सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, इट कंडक्ट्स रेगुलर ऑन साइट विजिट्स ऑफ बैंक्स टू मेक श्योर कि बैंक इज complying with the rules and regulation related to capital requirements and restrictions. ठीक है, on asset holding. ठीक है, तो ये जो ऑन साइट विजिट्स या जो ऑन साइट सुपरविजन का काम है इट इज़ बेसिकली परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल बैंक्स. ठीक है, इन द केस पाकिस्तान इट इज़ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, और इसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि वो अपनी टीम को भेजते हैं इन बैंक्स, और बैंक्स जो हैं और वो टीम्स जो है बैंक्स में जाके एक्चुअली विज़िट करती है, उनकी बुक्स चेक करती हैं बैंक्स की, एंड दे मेक श्योर कि बैंक्स जो है कंप्लाई कर रहे हैं विद rules and regulation with respect to capital requirements and restrictions on asset holdings. तो अगर वो रूल्स को वायलेट करें तो देन those authorities अगर वो रूल्स को वायलेट कर रहे हो तो वो जो टीम होती है इट मेक्स अ नोट ऑफ दैट. ठीक है, और उस बैंक को जो है फिर नोट कर लिया जाता है. इट इज़ पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ बैड बैंक्स. ठीक है, और उसके ऊपर फिर मज़ीद सुपरविजन और ज़्यादा स्क्रीनिंग की जाती है. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट सुपरविजन. ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक सुपरविजन की जब हम बात करते हैं वी आर फेसिंग न्यू चैलेंजेस इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री. ठीक है, वो नए चैलेंजेस दे आर बेसिकली कमिंग अप मेनली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन. ठीक है, फाइनेंशियल इनोवेशन क्या है? The coming up of new types of financial assets, new types of financial instruments. ठीक है, financial innovation has produced new markets and instruments that make it possible for financial institutions to place big bets. ठीक है, financial innovation ने एक्चुअली जो है ये पूरा जो है लैंडस्केप भी चेंज कर दिया. It has actually made possible for banks to actually hide some of their assets and use those assets to engage in some very risky activities. ठीक है, इसकी वजह से बैंक्स के एसेट्स को मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना हैज़ बिकम लिटिल मोर चैलेंजिंग नाउ. ठीक है, तो उसके वाले से अब हमारे पास एक चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, सो इन दिस न्यू फाइनेंशियल एनवायरनमेंट व्हेन फाइनेंशियल इनोवेशन हैज़ टेकन चार्ज.
ठीक है, अ बैंक विच इज़ फाइनेंशियली हेल्दी एट वन पॉइंट इन टाइम मे बिकम इंसॉल्वेंट एक्सट्रीमली रैपिडली फ्रॉम ट्रेडिंग लॉसेस। ठीक है, तो इस तरह की जो नई फाइनेंशियल इन्वायरमेंट है, जब हमारे पास नई तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, लाइक डेरिवेटिव्स आ गए हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ आ गई डिफरेंट तरह की, ठीक है, जिस तरह ऑप्शंस होगी, फ्यूचर्स होगी, आपने उनका नाम सुना होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कोलेटरलाइज्ड मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, ठीक है, सीडीओ जो हम कहते हैं, कोलेटरलाइज्ड मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, वो भी हैं आजकल के ज़माने में, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तो इन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से फाइनेंशियल इंडस्ट्री हैज़ बिकम एक्चुअली इवन मोर रिस्की। सो बैंक्स विच एक्चुअली ट्रेड इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, यानी कि बैंक्स इन इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग करते हैं, लाइक डेरिवेटिव्स एंड मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग की वजह से जो है बैंक्स जो है उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो एक बैंक जो आज प्रॉफिटेबल है, आज इट इज़ डूइंग वेल, कल इट कैन सडनली गो इनटू लॉसेस, ठीक है। दैट इज़ द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री टुडे, ठीक है। सो दिस चेंज इन फाइनेंशियल एनवायरनमेंट हैज़ रिजल्टेड इन मेजर शिफ्ट इन थिंकिंग अबाउट द प्रूडेंशियल सुपरवाइजरी प्रोसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो वर्ड प्रूडेंशियल है, इट बेसिकली मीन्स इट कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रूडेंट, और प्रूडेंट का मीनिंग होता है वाइज, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली रिकग्नाइजिंग द फैक्ट कि फाइनेंशियल एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो चुकी है, तो उसकी वजह से जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ हैं, they have now realized that they have to come up with a new prudential supervisory process to make sure that banks are working efficiently. तो बैंक एग्जामिनर्स जो होते हैं, यानी कि जो बैंक examiners are those people who conduct online visits to banks. So they are now focusing on evaluating soundness of banks management system with regards to risk management. तो अब रिस्क मैनेजमेंट एक चीज़ है जो सामने आ रही है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली रेफर्स टू द फैक्ट कि इट इज़ बेसिकली एन एंटायर फील्ड इन फाइनेंस, ठीक है, पूरी फील्ड है फाइनेंस की। एंड रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली रेफर्स टू द फैक्ट हाउ बैंक्स मैनेज देयर रिस्क, ठीक है। तो नाउ बैंक्स हैव टू इंश्योर के they manage their risk well and they actually comply with regulations regarding risk management as well, ठीक है। और इसी compliance को check करना has become even more important for bank examiners today, ठीक है। So this change in financial environment has resulted in change in prudential supervisory throughout the world, ठीक है। So पूरी दुनिया में जो है ना ये supervision का process है, it's changing, ठीक है। It has undergone some major changes in the past few years and it is still changing, ठीक है। Now bank examiners give us separate rating on a scale of 1 to 5, ठीक है। तो ये scale of 1 to 5 है, इसका purpose होता है to actually evaluate 4 elements of risk management, ठीक है। So they basically bank examiners examine 4 elements of sound risk management, ठीक है। So they ensure whether 4 elements of sound risk management are in place or not, ठीक है। तो वो 4 elements क्या है? नंबर 1 is quality of oversight provided by board of directors and senior management, यानी कि जो senior management और board of directors हैं उनका क्या रोल है in managing the risk of the bank। इसके अलावा adequacy of policies and limits for all activities that present significant risk, बैंक्स में किस तरह की पॉलिसीज एग्जिस्ट कर रही हैं टू डील विद सिग्निफिकेंट रिस्क। इसके अलावा नंबर 3 इज़ द क्वालिटी ऑफ रिस्क मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। रिस्क को किस तरह मेजर किया जा रहा है और किस तरह मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है। और नंबर 4 इज़ किसी भी बैंक में इंटरनल कंट्रोल्स किस तरह के एग्जिस्ट करते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉड और अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स इज अगेन समथिंग यू हैव स्टडीड इन अकाउंटिंग, ठीक है।
इंटरनल कंट्रोल्स का पर्पज़ ये होता है टू कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी, ठीक है। होता ये है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो डेली ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, उन पर अगर आप चेक ना रखें तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉड एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल्स का बेसिकली पर्पज़ ये होता है टू prevent fraudulent activity. So internal controls is nothing but a set of procedures which prevent which make it difficult for people to do fraudulent activities. उसके बाद हम आते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो फाइनेंशियल रेगुलेशन या रेगुलेशन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ regulations related to disclosure requirements. तो disclosure requirement basically क्या है? Disclosure requirement basically ये कहती है कि इसका basic principle ये है कि banks are required to disclose all of their activities, ठीक है। यानी कि जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ में engage करें they are required to disclose that. वो disclose किस तरह करेंगे? On their financial statements, ठीक है। So disclosure requirements are a key element of financial regulation. Basel 2 जो है, Basel 1 के बाद Basel 2 आया था, puts key emphasis on this by mandating increased exposure by banking institutions of their credit exposure, amount of reserves and capital, ठीक है। तो Basel 2 ने has actually increased disclosure requirements of banks, ठीक है, and it has actually now made it mandatory for banks to tell about the credit exposure they have, to tell about the amount of reserves they have on their balance sheets, and to show the amount of capital they have, ठीक है। तो बेसल 2 ने अब ये मैंडेटरी कर दिया था कि बैंक्स जो हैं दे बेसिकली डिस्क्लोज देयर क्रेडिट एक्सपोजर इज how much credit they are actually extending to customers. इसके अलावा how much reserves they have, ठीक है। reserves is again it's amount of cash which banks hold as a backup, and इसके अलावा what other types of capital they own, ठीक है। कैश रिजर्व्स के अलावा और कौन से कैपिटल they own, ठीक है। regulations to increase exposure is needed to limit incentives to take on excessive risk, ठीक है। अगेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का पर्पज़ ये होता है कि जो बैंक के एक्सपोजर्स हैं, ठीक है, स्पेशली एक्सपोजर टू क्रेडिट, ठीक है, इस पर कोई इस पर एक तरह की लिमिट लगाए, ठीक है। और इन लिमिट्स का पर्पज़ ये होता है लिमिट्स का पर्पज़ ये होता है टू लिमिट इंसेंटिव्स टू टेक ऑन एक्सेसिव रिस्क एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन लिमिट्स का एक पर्पज़ तो ये होता है कि बैंक्स को डिस्करेज करना फ्रॉम टेकिंग रिस्की एक्शंस, ठीक है। बैंक्स को डिस्करेज करना फ्रॉम टेकिंग टू मच रिस्क। और इसका दूसरा पर्पज़ ये है टू इम्प्रूव एंड टू प्रोवाइड क्वालिटी इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स हु आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग इन द बैंक्स स्टॉक, ठीक है। उसके अलावा बैंकिंग इंडस्ट्री में एक और ट्रेंड आया था कि बैंकिंग इंडस्ट्री स्पेशली इन US से इवन इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इट वेंट थ्रू अ पीरियड जब हम देख सकते थे कि बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया था, ठीक है। सो बैंकिंग इंडस्ट्री वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ कंपटीशन। अब इस कंपटीशन की वजह से कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, कुछ नुकसान भी हुए हैं, ठीक है। कंपटीशन के इंक्रीज कंपटीशन के फ़ायदे ये थे, इट बेसिकली रिड्यूस द कॉस्ट फॉर द कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स के लिए लोन्स लेना आसान हो गया था बिकॉज कॉस्ट ऑफ लोन्स वेंट डाउन, ठीक है। और लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हुए हैं, ठीक है। तो नुकसान ये हैं बेसिकली जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है तो इट बेसिकली इंक्रीजेज मॉरल हैज़र्ड फॉर फाइनेंशियल, ठीक है। तो ये मॉरल हैज़र्ड की प्रॉब्लम ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। So financial institutions can take on more risk as a result of declining profits due to increased competition. तो moral hazard की प्रॉब्लम इस तरह से इंक्रीज़ करता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नाउ इंक्लाइंड टू टेक मोर रिस्क बिकॉज उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो सफ़र करने लग जाती है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स हैव नाउ कम अप विद रेगुलेशंस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंपटीशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री बिकॉज वो नहीं चाहते कि बैंक्स इंगेज इन रिस्की एक्टिविटीज़ या टू मच रिस्की एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो अब उन्होंने गवर्नमेंट्स ने अब
कंपटीशन बैंकिंग इंडस्ट्री को थोड़ा सा कम करना शुरू कर दिए, दे आर स्टार्टेड टू कंट्रोल इट, यानी कि दे डू नॉट वांट टू मच कंपटीशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जब कंपटीशन कम होता है दिस आल्सो हैज़ सम डिसएडवांटेजेस, ठीक है, बिकॉज जब कंपटीशन कम हुआ तो वी सॉ दैट रिड्यूस कंपटीशन लेड टू इंक्रीज चार्जेस टू कंज्यूमर्स एंड लोअर एफिशिएंसी ऑफ बैंक्स। ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा होने का एक फ़ायदा यह था कि इट मेड बैंक्स मोर एफिशिएंट, लेकिन जब कंपटीशन कम हुआ, ठीक है, तो इसका एक नुकसान कंज्यूमर्स को हुआ। कंज्यूमर्स को नुकसान ये हुआ कि इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर द कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई फाइनेंशियल प्रोडक्ट, यानी कि लोन्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, और एट द सेम टाइम रिड्यूस कंपटीशन लोअर्ड द एफिशिएंसी ऑफ बैंक्स। ठीक है, बैंक्स पहले ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे थे, लेकिन कंपटीशन कम करने की वजह से उनकी जो एफिशिएंसी है वो ख़राब हुई है, सफ़र हुई है। Okay, so that is all about financial regulation in this chapter. So I will quickly go through what we studied today, and then we'll end the lecture. ठीक है, हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की बात की थी, हमने कहा था कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का पर्पस क्या होता है, टू मेक श्योर दैट बैंक हैज़ इनफ कैपिटल टू बैक अप इट्स लोन्स। ठीक है, so capital requirements, they are being imposed by government regulation. ठीक है, that the reason is because governments in the United States and in the rest of the world, they are increasingly worried about banks holding of risky assets and about increase in banks off balance sheet activities. ठीक है, an agreement among banking officials from industrialized countries set up the Basel Committee on banking supervision, which set up, ठीक है, हमने Basel Committee की Basel Accord की बात की है, which was set up by the Basel Committee on banking supervision. ठीक है, Basel Accord came up with some regulations and recommendations. उसमें एक चीज़ ये थी, बेसल अकॉर्ड रिक्वायर्स दैट बैंक्स होल्ड एज कैपिटल एटलीस्ट 8% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, उसके अलावा एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज़ वर आल्सो एलोकेटेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है ज़ीरो डिफॉल्ट रिस्क वाले एसेट्स हैं, उसके बाद सेकंड कैटेगरी में क्लेम्स ऑन बैंक्स आ जाते हैं, एंड दिस हैज़ 20% वेट। फिर 50% वेटेज की कैटेगरी है, इट इंक्लूड्स म्यूनिसिपल बॉन्ड्स एंड रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस। फिर फोर्थ कैटेगरी है विच इंक्लूड्स लोन्स टू कंज्यूमर्स एंड कॉर्पोरेशंस। ठीक है, बेसल 1 वाज क्वाइट सक्सेसफुल। ठीक है, इसकी अच्छी रिकमेंडेशंस थी एंड दे वर एक्चुअली मेड इनटू रेगुलेशंस, एंड इसका अच्छा इम्पैक्ट हुआ ऑन द बैंकिंग सेक्टर, बट इट आल्सो हैज़ सम लिमिटेशंस। ठीक है, वो लिमिटेशन हमने डिस्कस की थी। टू एड्रेस द लिमिटेशन बेसल 1, द बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन हैज़ रिलीज न्यू प्रपोजल्स फॉर अ न्यू अकॉर्ड विच वर प्रेजेंटेड इन फॉर्म बेसल 2। फिर हमने फाइनेंशियल सुपरविजन की बात की। फाइनेंशियल सुपरविजन बेसिकली मींस कि इट इज़ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन, और इसका पर्पस ये होता है टू डायरेक्टली सुपरवाइज एंड मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो इसमें एक चार्टरिंग का प्रोसेस है। चार्टरिंग प्रोसेस इंश्योर्स के जो बैंक जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बैंक स्टार्ट कर रही हैं, और जो मैनेजमेंट है हु आर गोइंग टू रन द बैंक, दे आर केपेबल पीपल एंड दे हैव द एक्सपीरियंस एंड द स्किल्स टू रन द बैंक सक्सेसफुली। ठीक है, उसके अलावा हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात की। हमने कहा फाइनेंशियल इंडस्ट्री में फाइनेंशियल इनोवेशन बहुत होने लगी है, and now we have more risky financial instruments like derivatives हो गए, mortgage backed securities हो गई। ठीक है, तो इन रिस्की एसेट्स से साथ डील करने के लिए we have the banks now have to focus more on risk management। ठीक है, और इसकी वजह से जो सुपरविजरी प्रोसेस है ऑफ अथॉरिटीज़ हु सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ बैंक्स वो थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, बैंक एग्जामिनर्स मैंने बात की था आर दोज पीपल जो ऑन साइट विजिट्स कंडक्ट करते हैं एंड दे एग्जामिन द बुक्स ऑफ बैंक्स टू मेक श्योर दैट बैंक्स आर कंप्लाइंग विद द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, बैंक एग्जामिनर्स आर नाउ फोकसिंग ऑन इवैल्यूएटिंग साउंडनेस ऑफ बैंक्स मैनेजमेंट सिस्टम विद रिगार्ड्स टू रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि विद रिगार्ड्स टू हाउ वेल बैंक्स आर मैनेजिंग देयर रिस्क। ठीक है, नाउ बैंक एग्जामिनर्स गिव अ सेपरेट रेटिंग ऑन स्केल ऑफ 1 to 5. 4 elements of sound risk management are assessed to come up with risk management rating. ठीक है, 4 elements हैं sound risk management के। The first one is quality of oversight provided by board of directors, senior management. Number 2 is adequacy of policies and limits for all activities. Number 3 is the quality of risk measurement and monitoring systems. Number 4 is the adequacy of internal controls to prevent fraud or unauthorized act. ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स का अगेन पर्पस ये होता है देयर आर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ या सेट ऑफ प्रोसीजर्स जो एग्जिस्ट करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और इन सेट ऑफ प्रोसीजर्स का पर्पस ये होता है टू लिमिट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल रेगुलेशन की एक और अनदर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बेसिकली ये कहती हैं
that banks should disclose all types of exposure. तो बेसल 2 ने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को और इंक्रीज़ किया. बेसल 2 पुट्स की एम्फोसिस ऑन दिस बाय मैंडेटिंग इंक्रीज्ड एक्सपोजर बाय बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द क्रेडिट एक्सपोजर. ठीक, बेसल 2 कहता है बैंक शुड disclose the credit exposure, amount of reserves and capital. Regulations to increase exposure is needed to limit ठीक है. इस increased disclosure और exposure का basically purpose ये है to limit incentives to take on excessive risk and to improve and to provide quality information. ठीक है, तो एक purpose ये है to incentives को decrease करना है to take on excessive risk, and the other objective is to improve the quality of information which is provided to investors. ठीक है. उसके अलावा बात की competition has also played its role, it has played its part on affecting the banking sector. ठीक है, जब competition ज़्यादा banks के बीच में, तो that made banks more efficient, और उसके अलावा that also reduced the cost of financial products for the consumers. ठीक है, लेकिन competition के नुकसान भी हमने डिस्कस किए. एक नुकसान ये है कि it increases the tendency of banks to take more risk because उनकी profitability जो है वो सफ़र हो रही होती है because of competition. ठीक है, इसलिए governments all over the world they have now introduced regulation to reduce competition all over the world. ठीक है, और इस reduction in competition के कुछ नुकसान भी हुए हैं. ठीक है, एक नुकसान तो ये हुआ है कि it has decreased the efficiency of banks and it has increased the cost of products to consumers. Students, that is all for today's lecture. Okay, and actually I will end this lecture with a reading for you. Okay, I would like you to read about market to market accounting and the subprime financial crisis. This reading is available it's available in your book, and you will find this reading on page number 266. So read this topic in the book on page number 66. Again, the name of the topic is Market to Market Accounting and the Subprime Financial Crisis, and we will discuss this in the next lecture. And with that, I would like to say thank you so much. Goodbye and take care.